ইসকন যে নবদ্বীপ পরিক্রমায় বেরিয়েছেন, আমি প্রথমেই প্রভুপাদের প্রতি আমার প্রণাম শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং যারা বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ আছেন, প্রভুপাদ মহারাজ সকলকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি। এবং চৈতন্যদেবের ভাবধারা সারা বিশ্বে প্রচার করার জন্য আপনারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন, বিশেষ করে তার প্রেম ধর্মকে প্রচার করার জন্যে আমি আপনার এই বর্ধমান জেলা আপনারা প্রবেশ করেছেন। আমি বর্ধমান জেলার একজন মানুষ হিসেবে আপনাদের প্রণাম জানাচ্ছি, তার কারণ এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল মহাপ্রভুর পদধূলিতে পূর্ণ এই জায়গা আছে। আমি আমার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি। যাতে কোনো অসুবিধে যদি হয় আমাকে বলতে পারেন, আমি ব্যবস্থা নেব আমার বর্ধমান জেলাতে। থ্যাংক ইউ। আপনার নামটা বলুন। অবতার সার গোরায় অবতার, কেন না ভজিলি তারে। অবতার সার গোরায় অবতার, কেন না ভজিলি তারে। অবতার সার গোরায় অবতার, কেন না ভজিলি তারে। করিনি রে বাস গেল না পিয়াস, করিনি রে বাস গেল না পিয়াস, আপন করম ফেরে। আপন করম ফেরে। অবতার সার গোরায় অবতার, কেন না ভজিলি তারে। কণ্টকের তরু সদাই সেবিলি মন, অমৃত পাইবারে আসে। কণ্টকের তরু সদাই সেবিলি মন, অমৃত পাইবারে আসে। প্রেম কল্প তরু শ্রী গৌরাঙ্গ আমার। প্রেম কল্প তরু শ্রী গৌরাঙ্গ আমার, তাহারে ভাবিলি বিষে। তাহারে ভাবিলি বিষে। অবতার সার গোরায় অবতার, কেন না ভজিলি তারে।
আসে পলাশ শুকিলি মন নাসাতে পশিল কীট মনরে মনরে সৌরভের আসে পলাশ শুকিলি মন নাসাতে পশিল কীট ইক্ষুদণ্ড ভাবি কাট চুষিলি ইক্ষুদণ্ড ভাবি কাট চুষিলি মন কে মনে পাইবি মিঠ কে মনে পাইবি মিঠ অবতার সার গোরায় অবতার কেন না ভজিলি তারে হার বলিয়া গলায় পড়িলি মন সমন কিঙ্কর হার বলিয়া গলায় পড়িলি মন সমন কিঙ্কর শীতল বলিয়া আগুন পোহালি মন শীতল বলিয়া আগুন পোহালি মন পাইলি বজরতা পাইলি বজরতা অবতার সার গোরায় অবতার কেন না ভজিলি তারে সংসার ভজিলি শ্রী গৌরাঙ্গ ভুলিলি মনরে মনরে সংসার ভজিলি শ্রী গৌরাঙ্গ ভুলিলি না শুনিলি সাধুর কথা ইহ পরকাল দুকাল হরে কৃষ্ণ। আমরা এই নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা 2021 আমরা তৃতীয় দিনে পদার্পণ করেছি। এই তৃতীয় দিনে আমরা এখন কুলদ্বীপে আছি। কুলদ্বীপের পরে আমরা ঋতুদ্বীপে যাব। চম্পাহাটি গৌর গদাধর দ্বিজবাড়িনাথ আমরা দর্শন করব। আপনারা সঙ্গে থাকবেন, বাড়িতে বসেও আপনারা এই নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা সকলেই আপনারা দর্শন করতে পারবেন শ্রবণের মাধ্যমে এবং আমাদের সঙ্গে থাকবেন। এরপরেই আমরা আপনাদেরকে সূচনা দিব, বাড়ি বসেও আপনারা সেই নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা করতে পারবেন। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, ইসকন যে নবদ্বীপ পরিক্রমায় বেরিয়েছেন, আমি প্রথমেই প্রভুপাদের প্রতি আমার প্রণাম শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং যারা বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ আছেন, প্রভুপাদ মহারাজ সকলকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি এবং চৈতন্যদেবের ভাবধারা সারা বিশ্বে প্রচার করার জন্য আপনারা যে উদ্যোগ নিয়েছেন, বিশেষ করে তার প্রেম ধর্মকে প্রচার করার জন্যে আমি আপনার এই বর্ধমান জেলা আপনারা প্রবেশ করেছেন। আমি বর্ধমান জেলার একজন মানুষ হিসেবে আপনাদের প্রণাম জানাচ্ছি, তার কারণ এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল মহাপ্রভুর পদধূলিতে পূর্ণ এই জায়গা আছে। আমি আমার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি। যাতে কোনো অসুবিধে যদি হয় আমাকে বলতে পারেন, আমি ব্যবস্থা নেব আমার বর্ধমান জেলাতে। থ্যাংক ইউ। আপনার নামটা স্বপন দেবনাথ। Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare। आप लोगों ने शायद
एक कविता सुना होगा, हम बचपन में पढ़े थे, उसकी याद आ जाती है परिक्रमा में। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मेनी प्रोमिसेस आई हैव टू कीप। और माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मेनी प्रोमिसेस आई हैव टू कीप। तो मैनेजमेंट के तरफ से, इष्ट देव की तरफ से मैं कह रहा हूँ, बहुत दूर चलना है और मायापुर में पहुँचना है समय से। उसके बीच में बहुत सी कृत है, कथा है, कीर्तन है, प्रसादम है, दर्शन है, नौका पर राइडिंग है। इसीलिए हम लोगों को संक्षिप्त होना पड़ रहा है, होना चाहिए भी। तो यह स्थान है हम लोग जहाँ अभी आए हुए हैं, ऋतु द्वीप में। चांपाहाटी स्थान का नाम है, गांव का नाम है, मंदिर का नाम है, लेकिन यह द्वीपों में से 9 जो द्वीपों की चर्चा आती है तो उसमें यह ऋतु द्वीप है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आप अंतरद्वीप में सोए थे, आज की रात्रि आपने व्यतीत किया और वहीं पर मंगलारती, राधा माधव जी का दर्शन, पंचतत्व का दर्शन, नृसिंह भगवान की आरती आपने किया। फिर गंगा जी को आपने पार किया। न मेरे पास था तो गंगा जी को जब हम पार किए तो कोल द्वीप पे, ऋतु द्वीप से हम लोग कहाँ प्रवेश, सॉरी, अंतरद्वीप से कोल द्वीप और कोल द्वीप से यहाँ हम लोग आ गए ऋतु द्वीप। और इसके बाद आगे हम लोग और बड़े स्थान पर जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान की लीला के लिए सभी जो 6 ऋतु होते हैं वो बड़े उत्सुक थे कि हमको सेवा करना चाहिए, हमको सेवा करना चाहिए। तो सभी को तो चांस नहीं दिया जा सकता, सभी ऋतु एक साथ मध्य, उनका लीडरशिप कौन हो गए, ऋतु बसंत, ऋतुओं का राजा बसंत है। और सभी जो 5 ऋतु थे अपने सभी दोषों को छोड़कर अपने अपने गुण के साथ बसंत के साथ, ऋतुराज के साथ हो गए। तो इसीलिए ऋतु लोग उत्सुकता पूर्वक भगवान की सेवा करना चाहते थे। विशेषकर भगवान का आविर्भाव, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होने लगा, उससे सभी ऋतु बढ़िया से होना चाहिए। तो इसी ऋतुओं के कारण 6 जो ऋतु, उसी के नाम से इस द्वीप का नाम है ऋतु द्वीप। सभी ऋतुओं के मौसम के दोष नहीं है, दोष को विवर्जित करके अपने अपने केवल गुण को एक साथ रख करके अध्यक्षता में, बसंत की अध्यक्षता में भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। इसीलिए इस स्थान का, इस द्वीप का नाम है ऋतु द्वीप। और इसके अतिरिक्त आप लोग जानते हैं, बस यहाँ पर जयदेव कवि का भी स्थान है। किसी काल में जयदेव कवि रहे थे। एक कवि प्रसिद्धि है, बड़े बड़े लोगों में, कवियों में प्रसिद्धि है कि जो सिंहनी का दूध होता है, सिंह, टाइगर, टाइग्रेस, उसका दूध होता है, तो वह केवल और केवल स्वर्ण पात्र में सुरक्षित रहता है। उस दूध को स्टील के पात्र में, चांदी के पात्र में, मिट्टी के पात्र में डालते ही वो स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, फट जाता है। केवल और कहाँ सुरक्षित रहेगा, स्वर्ण पात्र में। ठीक उसी तरह जयदेव जी की जो कविताएं हैं, भगवान के विषय में वर्णन किया है, श्रीमती राधा रानी के विषय में वर्णन किया है, वह केवल और केवल शुद्ध उच्चतम कोटि के रागानुगा भक्ति के स्तर पर भक्त ऊंचे होते हैं, वही उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भगवान की अत्यधिक माधुर्यमय श्रृंगारपूर्ण लीलाओं का वर्णन है। हम लोगों का अधिकार है केवल जयदेव कवि के विषय में ही जानना, और भी हम लोगों के अधिकार के लिए भी कुछ लिखा है, उससे तक हमारा अधिकार होता है। और
यहाँ कर विशेषकर जयदेव जी की लीलाओं का खूब बढ़िया से सम्यक रीति से वर्णन करते हैं हम लोग के समझ प्रस्तुत करते हैं भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज। और हम लोग का सौभाग्य है एक तरह से हम लोग का जो सौभाग्य को कहिए कल्प वृक्ष, तो महाराज के उपस्थिति में आज वह कल्प वृक्ष पुष्पित और फलवान भी हो गया है। तो हम भाग्यशाली हैं। तो हम उस कथा को छोड़ते हैं। जयदेव जी के विषय में जो कथाएं हैं महाराज प्रस्तुत करेंगे, उसके पहले भागवत महाराज भी कुछ कहेंगे, भक्ति विजय भागवत महाराज। तो मैं इतना ही कह के समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। महाराज जी ठीक समय पर कथा को विश्राम दिए, धन्यवाद। हमारे बीच में भी अब हम महाराज जी को स्वाधीनता देते हैं कि कौन सी भाषा में बोलना चाहते हैं बोले। उड़िया में बोले महाराज, चैनल बदल जाएगा। हरे कृष्ण। किन नाम हरे कृष्णा। कौन सा भाषा में मैं कथा करूँगा, हिंदी या बांग्ला और इंग्लिश या तमिल? तो महामंत्र प्रभु ने एक अच्छा समाधान दे दिए, सबसे अच्छा रहेगा मैं उड़िया में बताऊंगा। हम मातृभाषा है, जगन्नाथ की भाषा है। तो महाप्रभु ने बताया मेरा दो भक्त है, ओडिया और गौड़िया। लेकिन एक दिन था, ऐसा था, एक दिन था महाप्रभु का दो ही भक्त ही थे, ओडिया और गौड़िया। लेकिन आज इस परिक्रमा से जो दिखाया जाता है, हमारा दो अधिकांश ही 200-300 लोग इधर है, बांग्ला उड़ीसा का है, और बाकी सब हिंदुस्तान से आए हुए हैं। तो इससे लगता है पूरा हिंदुस्तान ही महाप्रभु का भक्त है। तो ओडिया लोगों के लिए और बंगालियों के लिए तो महाप्रभु तो हम लोग जन्म से उनको जानते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद के कारण आज सारा हिंदुस्तान लोगों को हृदय में महाप्रभु जैसा स्थान लिए। सारा हिंदुस्तान का लोग, दक्षिण भारत का लोग महाप्रभु के लिए जितना पागल है, जितना उनका हृदय में स्थान दिए हुए, इसको जानने से बहुत आनंद आता है मेरे को। तो उड़िया बंगाली तो महाप्रभु जानते ही है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान का लोग महाप्रभु इतना प्यार करते हैं, ये बहुत अच्छा बात है। तो बांग्लाয় আমি সন্ধ্যাবেলা কথা করব, বাংলায় আপনারা শুনবেন। আর যেটা বললো আমার হিন্দিতে বাংলা ওড়িয়া সবাই বুঝতে পারবে, আমার স্পেশাল হিন্দি, চিন্তা করতে হবে না। तो मैं अभी हिंदी भाषा में कुछ बताऊंगा। हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है, हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान है, ठीक है। तो महाराज ने बताया ये जो द्वीप है, ये ऋतु द्वीप है। महाप्रभु का प्रकट से पहले 6 ऋतु इधर वास करते थे। तो आपस में वो लोग चर्चा करते थे, महाप्रभु का गुणगान करते थे। एक चर्चा में एक बात आया कि महाप्रभु कब प्रकट होंगे, इधर उनका जन्म होगा, प्रकट होंगे। तो लोग मालूम होगा जो बसंत ऋतु में महाप्रभु प्रकट होंगे।
तो सब बसंत ऋतु को बहुत महिमा गान करते हो, तुम इतना भाग्यवान हो, तुम्हारा काल, तुम्हारा समय में महापुरुष आएंगे, तुम महापुरुष का सेवा कर पाएंगे। तो इसीलिए बसंत ऋतु को ऋतुराज बोलते हैं। तो बसंत ऋतु ने बताया नहीं नहीं ऐसा नहीं, सिर्फ मैं नहीं, सब हम लोग मिलकर महापुरुष का सेवा करेंगे। इसलिए षड इस ऋतुद्वीप में रहते हैं और महापुरुष जब जब आके जो जो लीला करते थे वो लीला का अनुसार उसी ऋतु का प्रभाव इस द्वीप में प्रकट होता था। तो जैसा लीला होता था उसका अनुकूल आबहवा वातावरण जैसा इधर प्रकट होता था। इसलिए जयपद गोस्वामी महाराज ने बताते थे इधर कभी कभी एक दिन में 6 ऋतु का अनुभव होता है। तो ऐसा एक स्थान है। और चंपाहटी के बारे में तो आप लोग सुने हुए, पूर्वोक्त वक्ता लोग बताए हुए, क्यों चंपाहटी नाम हुआ है? बताए नहीं बाकी है। हाँ ओके है। तो ये जो परिक्रमा के बारे में 2 वर्णन आता है। एक तो परिक्रमा खंड में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वो वर्णना किए कैसे नित्यानंद प्रभु ने श्रील जीव गोस्वामी को लेके एक परिक्रमा किए थे। उस समय श्री नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को जो जो बताए थे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस सब वर्णना को लेके एक किताब रचना के नवद्वीप परिक्रमा है। और एक परिक्रमा हुआ था ईशान ठाकुर। ईशान ठाकुर जगन्नाथ मिश्र का घर में सब देखभाल करते थे। तो ईशान ठाकुर को महापुरुष का बचपन से शुरू करके सब कुछ लीला सब कुछ मालूम था। तो एक समय में श्रीनिवास आचार्य आए थे, तो महापुरुष को दर्शन करने पाए, महापुरुष अप्रकट हो गए थे। तो ईशान ठाकुर उनको लेके सब फिर नवद्वीप परिक्रमा किए थे। वो एक वर्णना आता है भक्ति रत्नाकर में। तो 2 तरीका वर्णना हम लोग शास्त्र में प्राप्त कर सकते हैं ये महापुरुष का नवद्वीप परिक्रमा के बारे में। तो ईशान ठाकुर ने जो बताए इस स्थान का ऐसा तो वर्णना है, इस स्थान का नाम चंपाहटी इसलिए द्वापर युग में चंपकलता सखी इधर आते थे। जो चंपक उद्यान था, बगीचा था, चंपक फूल लेके भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते थे। तो बाद में जब कलियुग शुरुआत हुआ तो कलियुग का लोग चंपा फूल को लेके तो बेचने शुरू कर दिए। तो हाट में बेचते हैं। इस इधर चंपा फूल का हाट बैठा गया, बाजार बैठ गया, इसीलिए इस स्थान का नाम चंपक हाट, अभी चंपाहटी बोलते हैं। तो और एक वर्णना ईशान ठाकुर ने देते हैं क्यों चंपाहटी हुआ। तो इधर एक बहुत प्रवीण विद्वान कृष्ण भक्त ब्राह्मण थे। तो भक्त थे तो कृष्ण भगवान को पूजा करते थे। तो पूजा करने के समय भगवान का ध्यान करते थे, तो उनका श्याम सुंदर रूप को ध्यान करते थे। तो एक बार चंपक फूल को लेके, बहुत सारे चंपक फूल लेके श्याम सुंदर का चरण में जो अर्पण किए, तो चंपक फूल को दर्शन करते थे। इतना सुंदर चंपक फूल है, चंपक फूल तो देखने के लिए सोने जैसा है। तो उनको जो देखते थे, देखते हुए वो ध्यान में तो ऐसा जो श्याम सुंदर रूप और गौर सुंदर रूप हो गया। तो गौर रूप को देखते हुए इतना आनंद आया तो मूर्छित होकर गिर गए। तो उनको ज्ञान वापस आया। तो उनको मन में लगा ऐसा क्यों हुआ, इस श्याम सुंदर रूप क्यों आज मेरा मन में इस गौर सुंदर रूप में आए हुए। तो जो शास्त्र फिर चर्चा के, शास्त्र खोल के देखे कि कलि युग में रुक्म वर्ण, श्रुति स्मृति पुराण में देखा गया कि कलि युग में रुक्म वर्ण, गौर वर्ण, स्वर्ण वर्ण का एक भगवत स्वरूप होते हैं, जो बहुत औदार्य भाव होते हैं। इस कलि युग में वो आएंगे। तो जब इस बात को मालूम हो गया तो वो दुखी हो गए, क्योंकि कलि युग में आएंगे, इतना दिन तो मैं शरीर धारण करके रह नहीं पाऊंगा।
तो दिखे खूब रोने लगे। तो उस समय श्री चैतन्य गौरांग महाप्रभु स्वयं उनका विरह को अनुभव करते हुए उनका सामने में प्रकट हो गए। तो उनका आश्वास दिए, तो मेरा भी दर्शन किए, फिर मेरा लीला जब मैं प्रकट करूंगा तुम भी मेरा लीला में आके अंश ग्रहण करेंगे। तो महाप्रभु अंतर्धान हो गए। तो ये जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण चंपक फूल का बहुत गुण महिमा गान करने शुरू कर दिए। चंपक फूल को बताया, तुम मेरा सौभाग्य ले आया, तुम्हारा लिए तुमको मैं ध्यान किया, इसलिए तुम्हारे लिए मैं गौर रूप चंपक वर्ण का गौरांग रूप को दर्शन कर पाया। तो चिल्लाते हुए एक चंपक फूल का महिमा गान करते थे, जैसा हाट बाजारों में लोग चिल्लाते हैं, वो चिल्लाते हुए चंपक फूल का महिमा वर्णना करते थे। इसीलिए इस स्थान का नाम हुआ चंपाहाटी। ये चंपाहाटी का एक महिमा होता है। तो इस स्थान का चंपाहाटी तो है, इधर गौर गदाधर विग्रह है। हाँ, कोई महाराज बताएंगे द्विजो बानीनाथ इधर रहते थे, गौर गदाधर इधर आए हुए, नित्यानंद प्रभु आए हुए। तो इस स्थान का और एक महात्म्य है, कवि जयदेव भी इस स्थान पर आए हुए। कवि जयदेव गीत गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत प्रिय था। चंडीदास, जयदेव, विद्यापति का जो लिखे हुए महाप्रभु अवतीर्ण होने से बहुत पहले, तो ये सब आके राधा कृष्ण के बारे में जो कुछ लिखे हुए महाप्रभु प्रिय था। तो कवि जयदेव गंगा का उस पार एक बलाल दिघी करके एक स्थान है, उस स्थान का नाम पृथ्वी कुंड है। पृथ्वी महाराज जब धरती को समतल करते थे, समान करते थे, उस समय उधर आए थे, उधर बहुत ज्योति देखे हुए। तो सत्यावेश अवतार थे, उनको मालूम हुआ कि गौरांग महाप्रभु इधर प्रकट होंगे, इसलिए बहुत बड़ा तालाब बना, इसको नाम पृथ्वी कुंड था। तो बाद में इस कुंड को संस्कार के, तालाब को संस्कार किए बलाल सेन, इसीलिए उसका नाम होगा बलाल दिघी। तो अभी वो पुष्करणी नहीं है, तालाब नहीं है, वो जमीन हो गया। आप लोग जब जाएंगे चैतन्य मठ और मुरारी गुप्त श्रीपाठ का बीच में तक बहुत बड़ा जमीन है, वो नीचा जमीन है, उसी का किनारे पर कभी जयदेव पद्मावती को साथ में लेके एक कुटिया में रहते थे। तो उधर ही जो 10 अवतार गान हम लोग करते हैं, केशव धृता नरहरि रूप, उधर ही कभी जयदेव उसको रचना किए थे। तो उस समय लक्ष्मण सेन राजत्व करते थे उधर। तो लक्ष्मण सेन को वो गीत गोविंद का गान उनको मिला, तो आश्चर्य, इतना सुंदर लिखने वाला कौन है। तो फिर अन्वेषण के कौन लिखा, गोवर्धन आचार्य करके एक आदमी उनको बताए, इसको तो कभी जयदेव न लिखे। तो किधर है कभी जयदेव, कौन सा देश में रहते हैं? अरे कौन सा देश में रहते हैं? तुम्हारे घर के पास रहते हैं, ये बल्लाल दिघी में रहते हैं। हाँ भैया ऐसा है। तो फिर रात को वो रात पोशाक को परित्याग करके एक वैष्णव रूप धारण करके, हाँ, पोशाक पहन के उनका घर पर गए। तो प्रणाम करके घर का कोने पर बैठे। फिर कहे भी जयदेव इनको देख के मालूम हो गया ये राजा है। राजा आया, लेकिन वो खूब विरक्त थे, विषय का प्रति आसक्त नहीं था। ऐसा नहीं थे हम लोग जैसा कोई मंत्री और राजा आएंगे तो खड़ा होकर जाएंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे, ऐसा नहीं थे। तो राजा हो तो क्या है, मैं तो राजा का राजा को भजन करता हूँ। तो क्या रखे नहीं, वो कोने में बैठे थे। कुछ समय के बाद तो लक्ष्मण सेन आके प्रणाम किए, उनका परिचय दिए, मैं राजा हूँ, आप कृपा करके मेरा राज प्रासाद में पधारिए। तो कभी जब नहीं, अरे तुम विषयी हो, बहुत डांटा उनको, बोला मैं अभी भाग जाऊंगा, तुम्हारे देश में नहीं रहूँगा, मैं नीलाचल धाम चले जाऊंगा। तो राजा बहुत फिर अस्थिर हो गए, नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। हाँ, आप एक काम कीजिए, एक गंगा का उस पार एक चंपक हट बहुत सुरम्य स्थान है, मैं उधर एक कुटिया आपके लिए बना दूंगा, आप 2-3 साल उधर रोकिए। मैं आपको विनती करता हूँ, मेरा इच्छा से नहीं, आप जब निर्देश देंगे तब जाके मैं आपका चरण दर्शन करूँगा। तो इससे कवि जयदेव बहुत खुश हो गए। कवि जयदेव ने बोले, नहीं तुम बड़ा कृष्ण भक्त हो, तुमको सताने के लिए मैं तिरस्कार करके बोला इतना, तुम विषय हो,
तुम्हारा जगह पर नहीं जाऊंगा, तब भी तुम उसको सहन किए। इसको ये मेरे को मालूम होता है तुम कृष्ण भक्त हो, ठीक है, मैं तुम्हारा वासना को पूर्ण करूँगा। तो फिर कवि जयदेव के लिए इसी स्थान पर एक अच्छा कुटिया बनाए। तो कवि जयदेव इधर रहते थे। तो कवि जयदेव तो राधा माधव का उपासना करते थे, माधव का पूजा करते थे। कवि जयदेव का जैसा ब्राह्मण को हुआ था, कवि जयदेव जो विग्रह को पूजा करते थे, उस श्याम सुंदर विग्रह को कवि जयदेव पद्मावती तो चंपक फूल ले आते थे, और कवि जयदेव पद्मावती मिलकर वो श्याम सुंदर कृष्ण को सेवा करते थे। वो दोनों ने देखे तो वो विग्रह गौर सुंदर रूप धारण किए। तो उस सुंदर रूप को दर्शन करते हुए दोनों ही उधर मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर महाप्रभु प्रकट हुए। महाप्रभु प्रकट होकर दोनों को हाथ पकड़ के उठा के बताए, देखो तुम दोनों मेरा बहुत प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं आया हूँ तुमको साक्षात दर्शन देने के लिए। तुम मेरा जन्म जन्मांतर भक्त हो, तो तुम मेरा बहुत प्रिय हो। मैं जब कलियुग में कुछ साल के बाद में इधर आऊँगा, मैं सन्यास लेके श्री क्षेत्रपुरी में जाऊँगा। उधर तुम जो गीत गोविंद लिखते हो मेरा बहुत प्रिय है, इसको श्रवण करते मैं जीवन धारण करूँगा। तुम दोनों मेरा बहुत प्रिय है। तो अभी तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों नीलाचल चले जाओ, और जब तुम दोनों नीलाचल में तुम्हारा देहांत हो जाएगा, फिर तुम वापस इधर नवद्वीप में आएंगे। ऐसा बोलते बोलते महाप्रभु वो अंतर्धान हो गए। और जब अंतर्धान देख नहीं पाए तो दोनों ने मूर्छित होकर गिर पड़े। दोनों रोने लगे। क्यों रोने लगे? तो हम लोग क्या अपराध हो गया? इतना अच्छा स्थान है नवद्वीप धाम, क्यों महाप्रभु बोले हमको इसको छोड़ के जाने के लिए? दोनों ने रोने लगे। फिर सुनने नहीं हुआ, नहीं तुम्हारा अपराध नहीं है। 2 कारण के लिए तुमको पुरी जाने पड़ेगा। एक तो कारण है तुम्हारा इच्छा था पुरी जाकर जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए, और एक कारण है जगन्नाथ भी उद्ग्रीव होकर तुम्हारा दर्शन करने के लिए बैठे हैं। जो भक्त भगवान को दर्शन करने के लिए उद्ग्रीव होता है, भगवान उससे ज्यादा उद्ग्रीव है उनको भक्त को दर्शन करने के लिए। महाप्रभु ने बताया तुम इसीलिए तुम नीलाचल धाम जाओ। हाँ, वो सुनने का नहीं हुआ। तो दोनों ने बहुत दुखी होते हुए भी महाप्रभु का निर्देश है तो फिर रोने लगे। नवद्वीप वासियों को बोले, नवद्वीप वासी तुम कितना महान हो, हम लोग अधम हो, इस सौंदर्यपूर्ण स्थान को परित्याग करके हमको जाने पड़ेगा। वो लोग बहुत रोते हुए धाम वासियों के पास क्षमा मांगते थे। तो अष्टदल कमल का ऊपर नवद्वीप धाम को दर्शन किए। इतना सुंदर धाम, धाम का स्वरूप उनको प्रकट हुआ। तो उसी धाम को दर्शन करते हुए जाते हुए जब तक पीछे देखते थे जाते थे, पीछे देखते थे जाते थे, पीछे देखते थे जाते थे, जब तक और देख नहीं पाए तब तक नवद्वीप को दर्शन करते हुए फिर जाके नीलाचल धाम चले गए। जय कवि जयदेव की। तो कवि जयदेव जो गीत गोविंद लिखे हुए और गीत गोविंद के बारे में मैं संक्षेप में एक लीला बताऊंगा, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। तो कवि जयदेव का गीत गोविंद बहुत, कवि जयदेव लिखे हुए लेकिन जगन्नाथ का बहुत प्रिय है एक गीत गोविंद। तो कब इतना प्रिय है, एक दिन सुबह जब पूरी पंडाल लोगों ने दरवाजा खोले, जो श्रृंगार करते हैं, गए, देखा जगन्नाथ का कपड़ा से फड़ा हुआ है। तो क्या हो गया? और बहुत सब गंधा लगा हुआ है। तो ऐसा कैसा हो गया? कोई अपराध हो गया। तो राजा ने खाना पीना छोड़ के भगवान का चरण पर गिरे पड़े, क्या हो गया, क्या अपराध हो गया? तो जगन्नाथ ने स्वप्न बताया तुम्हारा अपराध नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ ना? कल रात को सुबह होने से पहले इस एक माली का कन्या वो बैंगन तोड़ती थी और गीत गोविंद गान गाती थी। एक गीत गोविंद गाना मेरा इतना अच्छा लगा तो मैं मंदिर को छोड़ के चला गया। और लड़की तो बैंगन तोड़ती थी, उनका पीछे पीछे मैं जाता था और उनका गान सुनते थे। उनका गीत गोविंद इतना मधुर था, मैं इतना मग्न हो गया
कि मेरा भूल गया जैसे मंगल आरती का टाइम हो गया। तो अभी मैं देखा सूरज उदय होता है तो मैं सोचने लगा अभी तो मंगल आरती का टाइम हुआ, अभी दरवाजा खोलेगा, मेरे इधर बैंगन का बगीचा में हूँ। तो मैं जोर से छूटने लगा। तो जब जोर से छूटता था वो बैंगन का कंटा से मेरा कपड़ा फट गया और उधर का गंधा लग गया इसीलिए। तो राजा बहुत चिंतित हो गए। तो भगवान जी कभी बाहर जाएंगे फिर वापस नहीं आएगा तो क्या होगा। तो जगन्नाथ ने बताया ठीक है, मेरे को मालूम है तू चिंतित है, मैं क्यों बाहर चला जाता हूँ। तो तुम मेरे को अंदर रखना चाहते हो तो एक काम करो, उसी मालिक कन्या को ले आओ, उसको एक सेवा दो, हर रोज मैं सोने से पहले इस गीत गोविंद को गान करेंगे तो मैं मंदिर छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो तब से इससे तब जाके मालिक को कन्या को ले आया। मालिक को पिताजी को बताया तुम आओ, तुम पुरी में रहेंगे, तुमको खाना पीना रहना सब तुमको मिलेगा, कुछ काम नहीं करना, सिर्फ तुम्हारा कन्या को एक गीत गोविंद गाना करना पड़ेगा। तो राजा ने अभी तक भी है एक ताम्र पत्र में लिख दिए, जितना दिन तक जगन्नाथ मंदिर रहेगा उतना दिन तक इस गीत गोविंद गाना चलेगा। पहले जमाना में वो डांस करते थे, महारी लोग डांस करते थे, देवदासी होते थे, वो शादी नहीं करते थे, डांस करते थे। अभी वो डांस नहीं होता है, लेकिन भक्त लोगों ने एक गान करते हैं। वो जगन्नाथ का इतना प्रिय है, जगन्नाथ का इतना प्रिय है, रात को जगन्नाथ स्पेशल गीत गोविंद कपड़ा होता है, मेरे को एक पंडा ने दिया, मैं गया था पूरी, जब कपड़ा दिया ना इतना सुगंध चंदन सुहा का गंधा लगता था। तो उसको सटा के लगाएंगे भगवान, इसको पहनेंगे तो उनका आराम से नींद आएगा। ऐसे सोने वाला भगवान नहीं है, हर समय दर्शन देते हैं, थोड़ा आराम आता है जब गीत गोविंद गाना एक कपड़ा को वो पहनते हैं। तो भगवान जगन्नाथ का इतना प्रिय है। तो वो भक्त जो गीत गोविंद रचना किए, इधर रह के भजन करते थे, इधर गीत गोविंद रचना करते थे। तो कितना पवित्र स्थान है, इस स्थान का महत्व देखिए। ऋतुद्वीप है, चंपाहटी है, गौर गदाधर, जब महापुरुष प्रकट का समय में 3 स्थान में विग्रह बनाया गया था, अद्भुत भाव में प्रकट हुए थे। एक गौर गदाधर उसमें से एक है, और किधर कालना में गौर नित्यानंद है, उधर विष्णुप्रिया महाप्रभु। ये 3 विग्रह महाप्रभु जब प्रकट थे उसी समय ये सब विग्रह प्रकट हुए थे। और सारी भी लीला है गीत गोविंद के बारे में, लेकिन और हमारा प्रोग्राम है इसलिए मैं इधर ही विश्राम दूंगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। परम पूज्य भक्ति पुरुष महाराज की जय, देव गोस्वामी के, चंपाहाटी के। शंकर निताय प्रभु माधव प्रभु आए हुए हैं, जो हमारी परिक्रमा के जब मैनेजमेंट इंचार्ज हैं माधवरी प्रभु। तो मैं अनुरोध करता हूँ अनाउंसमेंट है वो करें, उसके बाद हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बोलो गौरांगा, जोर से बोलिए गौरांगा, और जोर से बोलिए गौरांगा। हरे कृष्णा। हरि बोल। नवद्वीप मंडल परिक्रमा की। आपको कैसा लग रहा है परिक्रमा? हरे कृष्णा। तो महाराज बहुत सुंदर तरीका से आपको बता रहा था कैसे इस चापाहाटी में अच्छा लीला हुआ। तो आज हम लोग इधर हैं, इधर से हम लोग बहुत सारे लीला स्थान हम लोग दर्शन करेंगे। तो हम लोग का इधर ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा प्रताप नगर में, तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। तो आप लोग जानते हैं जब हमारा नवद्वीप मंडल परिक्रमा शुरू हुआ चलते हुए,
30 साल से ज़्यादा हो गया हमारा परिक्रमा। तो उस टाइम एक ही ग्रुप था परिक्रमा का, उसके बाद 2 ग्रुप हुआ, इंटरनेशनल ग्रुप, उसके बाद बंगाली ग्रुप हुआ, उसके बाद 3 ग्रुप हुआ, रशियन ग्रुप, हिंदी ग्रुप, ऐसे बांग्ला का 3 ग्रुप हो गया, नामाट्टा का 2 ग्रुप, गीता कोर्स का 1 ग्रुप, हिंदी ग्रुप, रशियन ग्रुप, इंटरनेशनल ग्रुप, और लास्ट ईयर नया ग्रुप हो गया तमिल ग्रुप। तो ऐसा 7 ग्रुप हो गया परिक्रमा के लिए। तो लेकिन हम लोग रहते हैं रात में, इस टाइम कोरोना वायरस के कारण इस टाइम हम लोग वापस जा रहे हैं मायापुर धाम, लेकिन हम लोग रात में रहते हैं, उधर कैंप हमारा रहता है, उधर हम लोग रहते हैं रात को। तो पहले हमारा कोई जगह नहीं था, जमीन नहीं था, तभी आप लोगों का हेल्प से हमारा हर जगह जिधर हम लोग कैंप होता है उधर हमारा सब खुद का जमीन हो गया। तभी जमीन तो हुआ, लेकिन जमीन में अभी पंडाल होता है, और जो लोग मैनेज करते हैं, जो लोग रहते हैं, उनका टेंशन रहता है, क्योंकि इस टाइम थोड़ा बारिश होता है, तूफान आती है। तो जब बारिश तूफान ये सब चीज आता है तो टेंशन हो जाता है, पंडाल गिर जाएगा तो क्या होगा। इसीलिए परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज बताते हैं, तो हमारा उधर खुद का बिल्डिंग हो जाना चाहिए। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा? तो हम लोग चाहते हैं हर जगह जिधर जिधर हमारा कैंप होगा उधर कैंप नहीं होगा, अभी हमारा खुद का बिल्डिंग, रहने का गेस्ट हाउस बन जाएगा आपके लिए। तो ऐसा हम लोगों का प्लान है, तो धीरे धीरे ऐसा होगा। इसलिए हम लोगों को आपका सहायता चाहिए, तो तब हमारा जो इच्छा आप लोगों को सेवा करने का वो वास्तविक होगा। इसलिए हम लोग आपको रिक्वेस्ट करते हैं, इधर आपको चापाहाटी के लिए सेवा कीजिए, और हम लोग प्रताप नगर में इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे। तो आप लोग थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हो जाइए इस नवद्वीप मंडल डेवलपमेंट के लिए। आप थोड़ा आगे आइए थोड़ा, और हम लोग हेल्प कीजिएगा। तब क्या होगा, धीरे धीरे हमारा खुद का जगह के साथ खुद का बिल्डिंग रहेगा, तब हमारा बहुत अच्छा परिक्रमा होगा। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, नवद्वीप मंडल परिक्रमा करने के कारण पूरा दुनिया भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत साल तक, 10,000 साल तक ये हरे कृष्ण आंदोलन रहेगा। तो आने वाले पीढ़ी के भक्त लोगों के सेवा के लिए हम लोग कुछ करके जाएंगे, तो सब भक्तों का कृपा हम लोग प्राप्त करेंगे। तो इसलिए आप लोग इस सेवा में जुड़ जाइए, और मैं भक्ति पुरुषोत्तम महाराज को बोलूँगा कुछ बोलने के लिए इसके बारे में। তো ব্যাপার হচ্ছে এই যে নবদ্বীপ পরিক্রমা হচ্ছে, এটা তো আরো বাড়তে থাকবে। 200 লোক থেকে শুরু হয়েছিল, এখন 12,000 লোক হচ্ছে। এটা কমবার কোনো প্রশ্নই নেই। কিন্তু একটা সমস্যা হচ্ছে যে আমরা যে স্থানগুলি দেখছি, जो स्थान हम लोग देखते हैं ना, उस स्थान को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारा अगली पीढ़ी लोग के लिए स्थान ही नहीं रहेगा। आम घाटा है, सो आम का पेड़ काट देते हैं, और जो जानुमणि का आश्रम है उधर मुर्गी का पुल्ट्री बना दिए, ऐसा होता है। इसीलिए ये नवद्वीप डेवलपमेंट ट्रस्ट बनाया गया। तो आप लोग सब अच्छा से सोचना चाहिए, इसको सुरक्षा करना, डेवलपमेंट करना कितना जरूरी है। महाप्रभु का महिमा आज सारा दुनिया में इतना प्रचार होता है, सारा दुनिया का लोग आते हैं। इसलिए आप लोग सब अनुदान दीजिए। जैसा आप लोग आके हमारा मायापुर मैनेजमेंट का ओर से हर तरीका कोशिश किया जाता है, कैसा सुस्त से अच्छा से आप लोग परिक्रमा कर पाएंगे। तो हम लोग टेंट लगाते हैं, अभी इच्छा है उनको घर बनाएंगे, देखो पेड़ लगाएंगे, तो अच्छा से आप लोग कर पाएंगे। आप लोग का परवर्ती समय में जो लोग आएंगे अच्छा से परिक्रमा कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है,
इसीलिए हम लोग को करोड़ करोड़ रुपया चाहिए, लेकिन करोड़ का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इतना भक्त है सारा दुनिया भर के, तो आप लोग सब लोग सहयोगिता करेंगे तो इसके बारे में संगठन को हो प्रताप नगर में और चर्चा करेंगे। आप लोग आगे आइए, इसमें मदद कीजिए और भी दूसरे लोगों को बताइए। ये नवद्वीप मंडल परिक्रमा जो प्रकल्प है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने इसको शुरू किए, उसमें 5000 भक्त लोग परिक्रमा करते थे, जो बड़ा बड़ा जमीन भी खरीद करके किए थे। तो इसीलिए ये पूर्व आचार्य को संतुष्टि के कारण के लिए जो नित्यानंद पुरुष स्वयं जो परिक्रमा सूत्रपात किए हुए, उसी परिक्रमा को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत जिम्मेदारी है हम लोग का ऊपर। तो हम लोग जो अंश ग्रहण करेंगे, महाप्रभु का नित्यानंद प्रभु का कृपा अवश्य अवश्य हमको प्राप्त होगा। इसीलिए आप लोग अच्छा से सोचिए कैसा इस प्रकल्प को और अच्छा से बढ़ा पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नवद्वीप मंडल परिक्रमा की तो আমরা যেটা আলোচনা করছি যে আমাদের নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা দিনকে দিন বাড়ছে। মহারাজ বলছিলেন কিভাবে 50, 100, 200 জন ভক্ত নিয়ে পরিক্রমা হতো, এখন 10,000-এর উপর প্রায় 12,000 ভক্ত পরিক্রমা করে। তো এখন এই পরিক্রমাকে বলুন হরে কৃষ্ণ। তো আমাদের আপনাদের সাহায্যের ফলে আমাদের যে সমস্ত স্থানে আমরা রাত্রিবেলা ক্যাম্প করে থাকি সে সমস্ত স্থানে এখন আমাদের নিজেদের জায়গা হয়ে গেছে। আপনাদের অনুদানের ফলে আমরা নিজেদের জায়গা কিনে ফেলেছি নবদ্বীপ মন্ডল ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্টের নামে। এটা তারা খুশি? জোরে বলুন একটু হরি বল। তো গুরু মহারাজ সেই সময় জয়পাল স্বামী গুরু মহারাজ চাইছেন যে প্যান্ডেল করে থাকতে একটু অসুবিধা হয়, ভক্তদের দুশ্চিন্তা হয়, বর্ষা ঝড় তখন কি হবে না হবে তো সেই দুশ্চিন্তা থাকে। সেই কারণে আপনারা জমি কেনাতে সাহায্য করেছেন। এখন আস্তে আস্তে যাতে আমরা বাউন্ডারি ওয়াল দিতে পারি, গাছ লাগাতে পারি, সুন্দর সুন্দর থাকার জায়গা আপনাদের জন্য করতে পারি, এই জন্য অনুদান দরকার। মহারাজ বলছেন যে আমাদের অনেকটা টাকা দরকার এটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য। তো আপনারা যদি এগিয়ে আসেন তাহলে এটা অবশ্যই সম্ভব হবে। তো আপনারা কারা কারা এই প্রকল্পে যুক্ত হতে চান একটু হাত তুলে হরিবল বলে একটু যদি সম্মতি জানান তাহলে আমরা আনন্দিত হব। আওয়াজটা একটু কম হয়ে গেল মনে হচ্ছে, একটু জোরে বলুন। সব ছবি হচ্ছে, আপনাদের ছবি তোলা হচ্ছে, ঠিক আছে হরিবলের। So I like to request all of you, those who do not understand Bengali or Hindi, I like to tell you that Navadvip Mandal Parikrama is a very important service for all the devotees from all over the world. Bhaktivinoda Thakur said, by doing Navadvip Mandal Parikrama, the whole world can be liberated. And devotees from different parts of the world are doing Parikrama. More than 10,000 devotees did Parikrama last year. Because of coronavirus situation, today this year is very less devotees, but still a lot of devotees are doing parikrama. But by the help of so many devotees from different parts of the world, we have our own land to set up our own camp, and we also have other places of pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and we have acquired the land. But this land has to be developed. We have to put boundary wall, we have to plant trees, we have to develop infrastructure. For that we need a lot of financial support, and we have thousands and thousands of devotees from different parts of the world. So I appeal to all the devotees from different parts of the world to come forward and become part of this wonderful project for the service of the devotees for now and for the next 10,000 years. So please come forward and help us. Those who are willing to take part in this seva, there will be a counter at our Pratap Nagar, the place of taking lunch. That time we can discuss further on this subject matter. Hare Krishna. Navadvip Mandal Parikrama ke Jagadguru Srila Prabhupada ke Nitai Gaur Premanande Hare Krishna. हरे कृष्णा। धन्यवाद बहुत बहुत। नवद्वीप परिक्रमा के लिए काफी बातें कहा गया है।
हमारे बीच में गौरांग प्रेम स्वामी महाराज जी पधार चुके हैं, जिनके इंतजार हम कर रहे थे पिछले 2 दिन से। और वो दुर्भाग्यवश कहें जो भी है, उनकी हिंदी इतनी अच्छा नहीं है, बंगाली भाषा में कथा बोल गए। हाँ, FM में अनुवाद होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री नवद्वीप मंडल परिक्रमाकारी भक्त वृंद की निताई गौर सीताराम प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज के तृतीय दिने এই নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করতে করতে বর্তমানে আপনারা যে স্থানে এসেছেন এ হচ্ছে অশ্বনাক্ষ ভক্তিপীঠ। হরে কৃষ্ণ। আর এই গ্রামের নাম হচ্ছে মামগাছি, বোঝা গেল। আর এই দ্বীপের নাম হচ্ছে ঋতুদ্বীপ। কেন ঋতুদ্বীপ নাম হলো? কারণ এই যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই জগতে আসবেন তা জানতে পেরে এই যে 6টা ঋতু আছে, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত এবং শীত, বোঝা গেল। এই 6টা ঋতু, প্রত্যেকটা ঋতুর আবার একটা স্বরূপ আছে। তারা জানতে পেরে এই স্থানে একত্রে বসে 6 জনা তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন এবং কলহ ঝগড়া করছিলেন কি নিয়ে, যে এই যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আসবে এটা কোন ঋতুতে আসবে, কার সময় আসবে। সবাই দাবি করছিল আমার সময় আসবে। তখন তারা একটা সমাধান সূত্র বের করলেন যে আমাদের এই যে 6 জন আমরা আছি, কোন সময়টা সবচেয়ে ভালো, সেই ঋতুতে মহাপ্রভু আসবেন। তখন বিচার শুরু হলো গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড গরম, বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত হয়, রাস্তাঘাট কদমাক্ত হয়ে যায়, শরৎকালেও ওই রকম অবস্থা, হেমন্তকালে অন্য কিছু দোষ আছে, শীতকালে শীত। তখন দেখা গেল যে এই যে বসন্ত ঋতু, ফাল্গুন এবং চৈত্র মাস, এই সময় বেশি শীত না, গরম না, বর্ষা না, এই ঋতুটা হচ্ছে সর্বোত্তম। তখন সবাই মেনে নিল যে এই বসন্ত ঋতুতে ফাল্গুনের পূর্ণিমায় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আসবেন। তো যেহেতু এখানে ষড় ঋতু একত্রে বসে তারা এইরকম একটা মীমাংসা সূত্র বের করেছিলেন একত্রে বসে, যার জন্য এই দ্বীপের নাম হলো ঋতুদ্বীপ। নিতাই গর্বে আনন্দে হরি হরি বল, বোঝা গেল। আর এইখানে আপনারা এলেন, এখানে দেখতে পেলেন এখানে গৌর গদাধর বিগ্রহ আছে। তো এই গৌর গদাধর বিগ্রহ মহাপ্রভু যখন এই সময় এই জগতে প্রকট লীলা ছিলেন তখন এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে কি, যে এই যে পঞ্চতত্ত্বে যে গদাধর পণ্ডিত আছে তার ছোট ভাই নাম হচ্ছে দ্বিজবাণীনাথ। মহাপ্রভু যখন এই গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন, তো এই মায়াপুরবাসী নবদ্বীপবাসী যে সমস্ত ভক্তরা এই সংবাদ জানতে পেরেছিলেন তাদের মধ্যে দ্বিজবাণীনাথ একজন ছিলেন। তিনি এই সংবাদ জানতে পেরে কেঁদে একবার ব্যাকুল হলেন এবং তিনি জানতে পারলেন তার জ্যেষ্ঠ ভাই গদাধরও এই নবদ্বীপ মায়াপুর ছেড়ে চলে যাবে। তখন তিনি খুব কান্নাকাটি করতে লাগলেন এবং গৌর গদাধরকে বললেন, তোমরা যদি এই নদিয়া মায়াপুর ছেড়ে চলে যাও তাহলে আমিও দেশান্তরী হয়ে যাব, আমিও আর এই নবদ্বীপ মায়াপুরে বাস করব না। তখন গৌর গদাধর এই দ্বিজবাণীনাথকে বুঝালেন যে ঠিক আছে, আমাদের বিরহ যদি তুমি সহ্য করতে না পারো তাহলে তুমি একটা কাজ করো, এই নবদ্বীপ মায়াপুরের পশ্চিম দিকে চাম্পাহাটি নামক একটা মনোরম গ্রাম আছে, তুমি সেই গ্রামে গিয়ে বাস করো। আর সেখানে গিয়ে তুমি কি করবে, আমাদের এই গৌর এবং গদাধরের বিগ্রহ স্থাপনা করে তার সেবা করবে। আমরা যদিও বাস্তবে এখান থেকে চলে যাচ্ছি, তো বিগ্রহ রূপে প্রতিদিন তোমার সেবা আমরা গ্রহণ করব। তো তারপরে মহাপ্রভু যখন গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান, তারপর পরই এই দ্বিজবাণীনাথ তিনি এখানে চলে আসেন, এখানে বাস করেন এবং এখানে গৌর গদাধর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে তার সেবা করেন। যা হচ্ছে মহাপ্রভু যখন এই জগতে প্রকট লীলায় ছিলেন সেই সময়কালীন এই বিগ্রহ। মহাপ্রভু যখন এই জগতে প্রকট ছিলেন তখন 4 জায়গায় 4 বিগ্রহ স্থাপনা হয়েছিল। এইখানে হচ্ছে
গৌর গদাধর। আর মহাপ্রভু যখন গৃহত্যাগ করে চলে যান তখন বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরানী মহাপ্রভুর বাড়ির প্রাঙ্গণে যে নিম গাছ ছিল সেই নিম গাছের দ্বারা তিনি এক গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বিগ্রহ স্থাপনা করে তার সেবা করতেন। তো আগামীকাল যখন আপনারা নবদ্বীপ শহর ভ্রমণ করবেন তখন সেই বিগ্রহ দর্শন করতে পারবেন। যাকে বলা হয় ধামেশ্বর মহাপ্রভু। বোঝা গেল এই দুই বিগ্রহ দুই স্থানে। আর এখান থেকে কিছুটা দূরে যে অম্বিকা কালনা আছে, অম্বিকা কালনায় মহাপ্রভুর একজন অন্যতম পারিষদ ভক্ত গৌরীদাস পণ্ডিত যার নাম, যিনি ব্রজলীলায় কৃষ্ণের একজন অন্যতম সখা, সুবল সখা ছিলেন, তিনি এই গৌরলীলাতে গৌরীদাস পণ্ডিত রূপে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি ওই অম্বিকা কালনায় গৌর নিত্যানন্দ বিগ্রহ স্থাপনা করে সেবা প্রকাশ করেছেন। সেই বিগ্রহ এখনো সেখানে আছে। আর হচ্ছে কি সনাতন গোস্বামী সর গোস্বামীরা যখন বৃন্দাবনে বাস করছিলেন তখন মহাপ্রভুর একজন অন্যতম পারিষদ ভক্ত জগদানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর সাথে তিনি সবসময় খটমটি কোন্দল করতেন। মহাপ্রভুর অনুমতি নিয়ে তিনি তখন বৃন্দাবনে যাত্রা করলেন। যাত্রা করার সময় মহাপ্রভু সেই জগদানন্দ পণ্ডিতকে বললেন, সেই সময় সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে তিনি ওই মদনমোহন মন্দির তৈরির কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। তখন জগদানন্দ পণ্ডিতের দ্বারা মহাপ্রভু এই সংবাদ দিলেন যে তুমি গিয়ে সনাতনের নিকটে বাস করবে, সনাতনের সঙ্গে থাকবে, আর সনাতনকে বলবে উনি সনাতন যে আমার জন্য ওখানে মদনমোহন বিগ্রহ তৈরি করতেছেন তার পাশে যেন আমার জন্য যেন একটা জায়গা রাখে। তো সেই জগদানন্দ পণ্ডিত বৃন্দাবনে গিয়ে সনাতন গোস্বামীর কাছে যখন এই সংবাদ দিলেন তো মহাপ্রভুর এই ইঙ্গিত বুঝতে পেরে এই সনাতন গোস্বামী মদনমোহন মন্দিরের পাশে এই একটা মন্দির করলেন, সেখানে গৌর এবং নিত্যানন্দ বিগ্রহ স্থাপনা করলেন। সেই বৃন্দাবনে যারা যাবেন যে দ্বাদশ আদিত্য টিলায় এখনও সেই গৌর নিত্যানন্দ সেবিত হচ্ছে। তবে এই যে চার বিগ্রহ বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামীর দ্বারা গৌর নিত্যানন্দ, অম্বিকা কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের দ্বারা গৌর নিত্যানন্দ, আর এইখানে চম্পাহাটিতে দ্বিজবাণীনাথের দ্বারা গৌর গদাধর, আর নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরানীর দ্বারা সে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বিগ্রহ। মায়াপুরে ছিল তো বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরানী যখন অপ্রকট হন তো বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরানীর কোনো ভাই ছিল না, আপন ভাই ছিল না, তার যে কাকার ছেলে, কাকাতো ভাই, তারা তখন ওই বিগ্রহ মায়াপুর থেকে বর্তমানে নবদ্বীপ শহরে রেখে সেবা করছে। তো যেহেতু তাদের জামাই বাবু হচ্ছে মহাপ্রভু, তাই জামাই বাবুর মতন ওই বংশধররা এখনো সেবা করছে। জামাই ষষ্ঠীতে সেখানে বিশাল উৎসব হয়। জামাই বাড়িতে আসলে যেরকম ষষ্ঠীতে সেবা পূজা হয় সেই রকমভাবে তারা সেবা করে। সেই বিগ্রহ এখনো সেখানে আছে। আগামীকাল আপনারা সেখানে গিয়ে তা দেখতে পাবেন। বোঝা গেল? তো যাই হোক, এই যে আপনাদের প্রসাদ এসে যাচ্ছে, একটু দেরি হবে অনেকটা, প্রসাদ নামবে, লাইন করবে, ড্রামা হবে, তারপরে প্রসাদ পাবে। হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে? তো আপনারা এখানে অনেক কিছু শুনছেন যে এইখানে এইভাবে এই দ্বিজবাণীনাথ কর্তৃক সেবিত যে গৌর গদাধর বিগ্রহ আছে। পরবর্তীকালে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ এই বিগ্রহের সেবা গ্রহণ করেন। তার সেবকদের দ্বারা এই সেবা আজ অবধি চালিয়ে আসছেন। আর কি ছেড়ে দেবো? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এখানে একটা নাটক দেখাবে, অ্যানাউন্স করবে। হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে, সন্ধ্যাবেলা যারা বাংলাভাষী ভক্ত নাম হটে আসবেন, আজকে যা যা দর্শন হচ্ছে তা বর্ণনা করবো বিস্তারিতভাবে। হরে কৃষ্ণ। अद्भुत, इतना बढ़िया, इतना रसीला, आज तक
कभी नहीं, कभी नहीं। क्या महाराज, अंगूर? और अरे अंगूर की नहीं, मैं इस भजन की बात कर रहा था, अंगूर की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। अंगूर तो ऐसे ही खा रहा था। इधर आओ गोवर्धन प्रभु, इतना बढ़िया भजन ये आपने कहाँ से सीखा? किसने लिखा ये? और आप लोग क्यों गए? मुझे उस सज्जन से मिलना है जिन्होंने इतनी मधुर रचना की है। क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? महाराज की जय हो। जी महाराज, ये हमारे वैष्णव श्रेष्ठ, हमारे राज्य के सबसे बड़े अलंकारों में से एक, सबसे बड़े काव्य रचना करने वाले श्रीमद जयदेव गोस्वामी है महाराज। जयदेव गोस्वामी, कवि कुल शिरोमणि, वैष्णव श्रेष्ठ श्रीमान जयदेव गोस्वामी हमारे राज्य में प्रभु है। और हमें इसका ज्ञात नहीं। हम अभी मिलना चाहेंगे, तत्काल व्यवस्था की जाए। हम अभी जाएंगे और उनके मुखारविंद का दर्शन करना चाहेंगे प्रभु। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। आप ऐसे नहीं जा सकते वहां पे। क्यों? उनसे मिलने के लिए तो बड़े बड़े लोग तरसते हैं। अच्छा महाराज, वो तो सिर्फ वैष्णवों से मिलते हैं। उनसे मिलने के लिए तो सिर्फ वैष्णव ही मिल सकते हैं। वो कर्मियों को तो मुख भी देखना पसंद नहीं करते। कर्मी किसको बोला तू? मैं बाहर से ऐसा दिखता हूँ, अंदर से पूरा वैष्णव खाने के। महाराज मुझे पता है महाराज, आप अंदर से वैष्णव हैं। आप शुद्ध भक्त हैं महाराज। लेकिन महाराज वेशभूषा ऊपर से कृपया आप। अरे वेशभूषा का क्या लिया भाई, छोड़ दिया, ये नहीं पता। चलो अभी मैं चलता हूँ। भक्त के दर्शन के लिए ड्रेस का चिंता नहीं करते हम लोग। चलिए अभी ठीक है, चलिए महाराज। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्रीमान जयदेव गोस्वामी जी यही है। धन्यवाद। राम राम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमान जयदेव गोस्वामी की जय हो। अब कौन है जो इतनी ड्रामेटिक एंट्री के साथ आए? प्रभु जी, मैं आपका वही पुराना दास, भूल गए? आपका परिचय दीजिए। गिव मी योर इंट्रोडक्शन। प्रभु जी, मैं एक तुच्छ, इस छोटे से राज्य का राजा लक्ष्मण सेन हूं। जब मैंने आपके द्वारा रचित इस काव्य को सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा मुझे आपका दर्शन करना ही पड़ेगा। और मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि आप मेरे राज्य में। महाराज, मैं एक बात कहूं, आपको ये कुटिया बिल्कुल शोभा नहीं देती। मैं कहता हूं आप हमारे यहाँ चले, हमारा राज्य में स्वीकार करें। वहां किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। सुबह सुबह मुनक्का दूध, होटल प्रसाद, सब कुछ है वहां पे। मुझको ये कुटिया शोभा नहीं देती। वास्तव में इस कुटिया में आप शोभा नहीं देते। आपके जैसे कर्मी लोगों का चेहरा देख करके वास्तव में कृष्ण की विस्मृति होती है। You forget Krishna by seeing the face of a materialistic person like you. Please get lost. Otherwise, I will leave this place. नहीं, प्रभु जी ऐसा मत करो। वैसे बहुत साल बाद आप आए हो, ऐसा मत करो। देखिए, संसार में हर जगह एक बीच का रास्ता तो होता ही है। कोई बीच का रास्ता निकालिए प्रभु जी। आप तो कवि कुल शिरोमणि है, आपसे अछूता क्या रह गया? आप दया करें। इस तरह हमें दूधकारे नहीं, वैसे भी हमसे बहुत दूर चले गए हैं आप। क्योंकि मैंने स्थान को छोड़ने का निर्णय ले लिया है। यदि इसके अलावा और कोई विकल्प हो, in case you have any other option,
then I may think about it. है ना प्रभु जी। वो क्या है ना कि हमारे राज्य के एक पास में गंगा जी है और गंगा जी के उस पर हमारा एक बेस है, मतलब चंपाहाटी है। आपसे निवेदन है आप वहां आए, वहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और सारी व्यवस्था होगी। आप जैसा चाहे उस प्रकार से रह सकते हैं, अपना लेखन का कार्य पूरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात प्रभु जी, अगर आपकी अनुमति हुई तो कभी कभी मैं आ जाया करूंगा दर्शन करने। आप जैसा बोले, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं। राजा लक्ष्मण सेन, वास्तव में मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। कई लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन उत्तेजना के वक्त अपना आपा खो बैठते हैं। The greatness of a man is known by how he reacts or responds to provoking situations. And I could see that I have insulted you. Even then you were very humble, very tolerant, very respectful. तो इसमें मैं बहुत खुश हूँ आपसे। I'm very happy with you. ये सब आपकी ट्रेनिंग है प्रभु जी, आप ही से सब सीखा है। तो ये जो आपकी इच्छा है कि मैं चंपाहाटी नाम के स्थान पे जाऊं, वहां पे अपना निवास स्थान बनाऊं, तथास्तु। श्रीमान जयदेव गोस्वामी जी की। एक बार श्रीला जयदेव गोस्वामी कृष्ण स्मरण करते हुए कृष्ण लीला को लिख रहे थे। अद्भुत, अत्यंत मनोरम। जय कृष्ण कृष्ण। स्मरला करला खंडन मम शिरसि मंडलम देहि पदपल्लवम उदारम। श्रीमती राधा रानी के मान को भंग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके चरणों को अपने शीश पर धारण करते हैं। कृष्णा जस्ट इन ऑर्डर टू ब्रेक द ट्रांसेंडेंटल एंगर ऑफ श्रीमती राधिका, very gracefully he places the lotus feet of Srimati Radhika upon his head. Oh, so wonderful, so what? Oh, ये मैं क्या लिख रहा हूं? ऐसा भला कैसे संभव होगा कि सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परम भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों को अपने शीश पर धारण करेंगे? This is impossible. How is it possible that Lord can place the lotus feet of Srimati Radhika upon his head just to break the transcendental anger of Srimati Radhika? How can I write this? Oh, I thought I was in trance, but actually I have done an offense actually. Oh, ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूँ? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मुझे जाना होगा, मैं अभी नहीं लिख पाऊंगा। I cannot write anything. Oh no, I have to go. Padmavati. Padmavati, मैं अभी स्नान करके आना चाहता हूँ। मैं गंगा नदी में जा रहा हूँ, स्नान करूंगा और फिर आता हूँ।
Mama Shirasi, come. तुम प्रसाद तैयार रखना, हाँ? स्नान करके, हाँ प्रसाद। वरलगरलखण्डनम् मम शिरसि मण्डनम् देहि पदपल्लवम् उदारम्। Mission accomplished. Padmavati, Padmavati, oh my darling Padmavati. Well, where is the sun? Okay, लेकिन कहाँ तैयार है? तुम तो तैयार हो, प्रसाद भी तो तैयार होना चाहिए पद्मावती। जल्दी लाओ, थोड़ा कौड़ी पे। अरे क्या बात है, दिलो जिगर लो, ध्यान लो। बहुत ही सुंदर, अरे क्या बात है, शाख भी है। आहा, पद्मावती पद्मावती और डालमा। ओह, सारे संदेश भी है। क्या बात, क्या बनाती हो, वाह। स्वामी, यही प्रसाद तो मैं रोज बनाती हूँ। आज कुछ खास है। नहीं स्वामी, वही चीजें यूज किया है। तुम्हारे हाथों में जादू है पद्मावती, जादू है इन हाथों में, जिनसे तुम इतना स्वादिष्ट प्रसाद बनाते। अरे शर्माना कैसा, तुम्हारा धर्म है इतना स्वादिष्ट प्रसाद बनाना, और तुम ना धर्म इतने सुंदर तरीके से निभा रहे हो। तुम्हारा हृदय सुंदर, तुम्हारी भक्ति सुंदर, तुम्हारा प्रसाद अति सुंदर। वाह, आज आप कुछ नई बातें कर रहे हैं। क्या बात। For every crook there is a transcendental cook. बहुत मेरी समझ में नहीं। मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, क्या बात। वाह पद्मावती, तुमने तो आज हमारा हृदय जीत लिया। इसलिए हमने सोचा है कि इस हार में जीत है। अब हम चलते हैं। आज पता नहीं क्या हुआ स्वामी को, बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं और बड़े खुश थे। पद्मावती,
जी स्वामी। पद्मावती अपना माइक दो। पद्मावती जी स्वामी। मैं नहाने क्या गया, तुमने प्रसाद पाना शुरू कर दिया। संस्कृति तो ये है कि पहले पति पाता है, उसके बाद फिर पत्नी पाती है। क्या आज तुम्हारा उदर वेग तुम्हारी भक्ति के ऊपर हावी पड़ गया? चलो शुरू कर दिया तो पाई लो। स्वामी आपको अभी अभी पाके गए थे प्रसाद। बात कर दिया था मैं। क्या बातें कर रही तुम बताओ। ये देखो मेरे हाथ में वही गमछा है जो तुमने मुझे अपने हाथों से दिया था। मेरे को लगा आप गमछा गंगा पे ही भूल के आ गए। ओ पद्मावती, मैं गमछा कैसे भूल सकता हूँ? ये गमछा मैं पिछले 25 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। हेलो स्वामी मैं आपके बिना खाए आज तक कभी नहीं खाई। लेकिन आज तो तुमने अपना व्रत तोड़ दिया। नहीं तोड़ा है स्वामी जी, आपको मैंने प्रसाद खिलाया, आपका महाप्रसाद खा रही। अगर मैंने आज तक जो भी व्रत किए हैं, अगर आज साक्षी है कि आपको मैंने प्रसाद खिलाया था और उसके बाद ही मैं खा रही हूँ स्वामी। दिशाएं साक्षी हैं। क्या कह रही हो तुम पद्मावती, क्या कह रही हो? मैं अभी स्नान करके आ रहा हूँ, इतना जल्दी मैं आ करके प्रसाद पा भी लूंगा और तुम तब तो प्रसाद आधा कर भी चुकी होगी। यही मुझे कैसे संभव है पद्मावती? स्वामी यही लग रहा था, आप बड़े उछलते आए थे और आपने जाके वहाँ एक श्लोक भी लिखा और आपके चेहरे पे अजीब ही मुस्कान थी और आप बड़े अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे। क्या कह रही तुम? मैं उछलते आया था। हाँ स्वामी। मैंने श्लोक लिखा। हाँ स्वामी। कहाँ लिखा? वहाँ। मरण खंडनम मम शिरसि मंडलम ये तो मैंने श्लोक लिखा नहीं था, तो मैं लिखा नहीं। और इतनी सुंदर लेखनी ये तो मेरी हो नहीं सकती। मेरी पिछली लेखनी और ये लेखनी में इसका मतलब फिर क्या हुआ? फिर आपने जो माला भी मुझे दी। मैंने तुमको माला दी? हाँ स्वामी। कैसे संभव है? और फिर ये प्रसाद आपने पाया है? तो मैं, अरे पद्मावती तुम्हें बता तुम कितनी सौभाग्यशाली हो। तुम्हें बता तुम कितनी सौभाग्यशाली। पता है वो मुझे और कोई नहीं था, वो स्वयं कृष्ण थे। पद्मावती मैं संकोच कर रहा था कि स्मरण कर रहा था ये श्लोक बड़ा कैसे संभव, लेकिन स्वयं कृष्ण आए थे मेरी अनुपस्थिति। पद्मावती तुमने खुद अपने हाथों से कृष्णा कृष्णा तुम कितनी सौभाग्यशाली। इन हाथों को मेरे सिर पर पद्मावती तुम्हारा कितना सौभाग्य, तुमने साक्षात कृष्ण के दर्शन किए, साक्षात कृष्ण के दर्शन किए तुमने। ओह कृष्णा कृष्णा ओह कृष्णा। और लॉन्च प्रसाद जो भक्त ने स्पॉन्सर किया उनका भी हमें आशीर्वाद देना है कि उन्होंने परिक्रमा में नहीं है, कहीं भी है, लेकिन उनकी सेवा आज की जल सेवा जो जल हो रहा है वहाँ से फोन आया प्रभु जी हमारी सेवा कंटिन्यू रहना चाहिए, समझे कि नहीं? परिक्रमा कंटिन्यू तो हमारी सेवा भी कंटिन्यू रहना चाहिए, उन्हें फोन करके बताया। तो आज उनकी तरफ से
बाबू भाई डालिया सूरत वाले, उनके द्वारा ब्रेकफास्ट सेवा किया गया है। जोर से 3 बार हरि बोल वाला किसका है, जो कि कहीं सुबह से जप कर रहा है खुद माला में। ये माला ले लीजिए और किसको कुछ मिला है तो जल्दी हमें दे दीजिए। मैं आपका वही पुराना दास भाई, एक भक्त है क्या मृदंग बजाएंगे, एक करताल बजाएंगे। ओके, जय तो स्वामी महाराज क्लास। Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
राम